Hello everyone, this is Manish R. K. Sahu from the Department of Mechanical Engineering, SIPMT Raipur. नेक्स्ट टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम देखेंगे थर्मिस्टर। थर्मिस्टर दो शब्दों से मिलकर बना है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, थर्मल प्लस रजिस्टर। रजिस्टर इज अ electrical device, electrical component, and it is known as thermal resistor. So it is a temperature measuring device composed of semiconductor material. What is the property of semiconductor material? Whenever you increase the temperature, the conductivity of semiconductor material increases, or you can say when you increase the temperature, the resistance is very small. Conductivity increases and resistivity decreases. The resistance of thermistor decreases with increase in temperature. Main concept of thermistor, that resistance of thermistor decreases with increase in temperature. So we can measure temperature change with the help of resistance change, and this is done with the help of thermistor, a temperature measuring device. We all know that the conductivity of semiconductor material increases as temperature increases, right? And this device is also known as thermal resistor. These are having an operating range of -60 degrees Celsius to 15 degrees Celsius. So this is the temperature range. Very limited temperature range, -60 degrees Celsius to 15 degrees Celsius, and they are having high degree of sensitivity, right? The resistance temperature characteristics is given by, here we can see the relationship between resistance and temperature, right? So resistance RT is equal to R naught e power K, right? So RT is resistance of any body at temperature T, and R naught is the resistance at temperature T naught. Suppose T naught is a known temperature and T is a known temperature whose temperature we have to measure. हमको कैपिटल T की वैल्यू चाहिए और T नॉट हमको पता है, R नॉट पता है। तो अगर हमको RT पता चल गया, रेजिस्टेंस RT की वैल्यू अगर हमको मिल गई, R नॉट नोन है, T नॉट नोन है, तो हमको क्या मिल जाएगा? T मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे K है, K इज इक्वल टू B इंटू एक्स, वेयर एक्स इज 1/T माइनस 1/T नॉट, राइट? where T is a unknown temperature and T naught is a known temperature. B होता है thermal coefficient of material used and is constant depending on material and its value ranges from 3400 to 4000. तो हर मटेरियल के लिए थर्मल कोफिशिएंट साइंटिस्ट ने निकाल के रखा हुआ है। उन वैल्यूज़ को हम, उस टेम्परेचर की वैल्यूज़ को हमको क्या करना है? पुट करना है और RT निकालना है। RT निकल जाएगा तो क्या निकल जाएगा? हमारा टेम्परेचर भी निकल जाएगा, राइट? सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। RT इज इक्वल टू R नॉट इज इक्वल टू इंटू ई पावर B इंटू एक्स। वर्किंग ऑफ थर्मिस्टर। थर्मिस्टर इज सिंपल सीरीज सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी एंड एमीटर और गैल्वेनोमीटर। Any change in temperature causes change in resistance and corresponding change in circuit. सिंपल सी बात है, टेम्परेचर चेंज होगा तो वायर का रेजिस्टेंस चेंज होगा, और जो भी रेजिस्टेंस चेंज होगा उससे हम क्या निकाल लेंगे? टेम्परेचर चेंज निकाल लेंगे। Hence, temperature measurement done in terms of current and resistance. Advantages of thermistor. Highly sensitive, इसीलिए इसको सेंसर, थर्मल सेंसर के जैसा यूज किया जा सकता है। प्रिसीजन इज वेरी हाई, अवेलेबल इन वेरी स्मॉल साइज, इट्स सो कॉम्पैक्ट, इनएक्सपेंसिव। ठीक है, ये बहुत चीप होता है, ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं होता। इट इज़ हैविंग अ गुड स्टेबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, किसी और फिजिकल क्वांटिटी से ये अफेक्ट नहीं होता।
Disadvantages of thermistor: sometimes it shows highly non-linear behavior, so we can say linearity is very low for this device. Low range of temperature measurement, मैंने पहले ही स्लाइड में आपको बताया था कि टेम्परेचर रेंज का जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, राइट. सो दिस वाज द थर्मिस्टर, थर्मल रजिस्टर for temperature measurement, and it is a very small and compact device. That is why nowadays it is used widely for the temperature measurement and for the construction of temperature sensor and transducers, right. Next device is resistance temperature detector, RTD. What is the full form of RTD? Resistance temperature detector. So there is a difference between RTD and thermistor. In thermistor, semiconductor materials are used, but in RTD, conductors or metals are used, right. So RTDs are generally made up of metallic conductors like platinum, nickel and copper. The desirable properties of RTD material are as follows. हम इसकी properties देख लेते हैं. It should be fabricated in convenient way. It should have high value of thermal coefficient, बीटा, जैसे मैंने थर्मिस्टर केस में बताया था. इट शुड हैव लीनियर आउटपुट, आपका आउटपुट जो है वो इनपुट और आउटपुट का जो कर्व होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए. इट शुड नॉट पोजेस रेसिडुअल स्ट्रेसेस बिकॉज वी आर यूजिंग द मेटल्स. सो इन मेटल्स वी सी द रेसिडुअल स्ट्रेसेस, तो वो उसकी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए रेसिडुअल स्ट्रेसेस की. So this is the diagram of a RTD. These wires are known as resistance wire. This is mica. Ceramic powder is used for insulation, and stainless steel stainless steel body, outer body, right. So these are the main components of a RTD. It works just like the thermistor. There is only difference. थर्मिस्टर में सेमीकंडक्टर यूज होता है और आरटीडी में कंडक्टर यूज होता है या मेटल यूज होता है, ठीक है. और टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मेटल्स का, कंडक्टर्स का जो है रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, सेमीकंडक्टर का जस्ट अपोजिट, ठीक है. वर्किंग प्रिंसिपल: the heating due to current passing through the resistance element may affect the wire resistance, ठीक है. जैसे कि मैंने बताया, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. चेंज इन रेजिस्टेंस को हम क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे, या गैल्वेनोमीटर के फॉर्म में या वोल्ट गैल्वेनोमीटर से रेजिस्टेंस के फॉर्म में क्या मिल जाएगा हमको, टेम्परेचर मिल जाएगा, राइट. द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर चेंजेस एज द टेम्परेचर चेंजेस, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन टेम्परेचर मेजरमेंट, जैसे कि मैंने पहले बताया. The general expression for resistance of RTD metal material is given by RT is equal to R naught 1 plus alpha T minus T naught plus beta T minus T naught square and so on, where RT is a resistance of wire at temperature T1, R naught is a resistance of metal at T naught, ठीक है. तो बोल सकते हैं कि T1 हमारा अननोन टेम्परेचर है, T नॉट हमारा नोन टेम्परेचर है, R नॉट नोन है, ठीक है. सर्किट से हमको R मिलेगा, ठीक है. R को पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, T मिल जाएगा, ठीक है. तो रेजिस्टेंस हमको क्या देगा, रेजिस्टेंस के फॉर्म में हमको टेम्परेचर मिलेगा. तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन क्या है, ये वाला रिलेशन है. वेयर अल्फा बीटा आर द थर्मल कोफिशिएंट्स एंड दीज आर कांस्टेंट्स विच डिपेंड्स ऑन द मटेरियल. ये क्या करते हैं, मटेरियल पे, प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं, कांस्टेंट होते हैं, हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है, ठीक है. समझ में आया. तो यहाँ पे आपको, अगर आपको आर टी पता चल गया, आर नॉट पता चल गया, अल्फा बीटा कांस्टेंट है, टी नॉट पता है तो टी निकल जाएगा. सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द आर टी डी. एडवांटेजेस ऑफ आर टी डी: वाइड टेम्परेचर रेंज -200 डिग्री सेल्सियस टू 650 डिग्री सेल्सियस, ठीक है.
तो ये थर्मिस्टर के कंपैरिजन में इसका टेम्परेचर रेंज बहुत ज़्यादा वाइड है, -200 डिग्री सेल्सियस टू 650 डिग्री सेल्सियस। एक्यूरेट टेम्परेचर सेंसिंग, फास्ट रिस्पॉन्स एंड गुड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स है क्योंकि सेंसिटिव है। स्टेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये बहुत लंबे समय तक चल सकता है। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी रहती है। राइट, तो ये थे आपके एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस, इसका कॉस्ट हाई होता है क्योंकि इसमें प्लैटिनम जैसे क्या होते हैं आपके महंगे मेटल्स यूज किए जाते हैं। नीड फॉर ब्रिज सर्किट एंड पावर सप्लाई, possibility of self heating because it is a metal, larger bulb size is required। ठीक है, तो हमने आज देखा RTD रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, उसके कॉन्सेप्ट को आपने समझा होगा। ठीक है, राइट।